हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का प्री देने जा रहे हैं प्रैक्टिस मॉक पर। ये लाइव चल रहा है, आज रात 10 बजे तक ही है। आप में से कई लोगों ने दे दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया इसको जल्दी दे दीजिए। वैसे तो इसमें मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हमारे, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आज फिर इसे देकर देखते हैं कैसा रहता है। इसको कर लेते हैं। ओके, तो पहले इन्होंने इंग्लिश डाली हुई है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, पैराग्राफ को बाद में देखते हैं। ये देखते हैं, द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स एंड 5 कनेक्टर्स आर गिवन। ओके, तो कंजंक्शन का काम करना है। पीपल एक्चुअली हाइड देयर हॉबीज और प्रिटेंड दे डोंट डू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ वर्क। दे आर वरीड दैट देयर बॉसेस विल थिंक दे आर नॉट कमिटेड टू देयर वर्क। तो यहाँ पर आई थिंक रीज़न ही बताया गया है, बिकॉज big companies are the best potential partners in conversation. Okay, they have the finances, enforcement ability and motivation to protect these lands. Big companies are the best potential partners in conservation. Okay, conservation, because yeah, since they have the finances, enforcement ability and dash. India has laws and courts, a police force and a democratic setup. All of these seem to fail when it comes to protecting the vulnerable. तो yet होगा यहाँ पर कि सब कुछ होने के बावजूद। ओके, तो ये सेंटेंस हैं, ओनली वन वर्ड विल बी इनअप्रोप्रिएट। ग्रामेटिकली हो सकता है, कॉन्टेक्चुअली भी। ओके, द प्रेशर ऑफ फाइंडिंग वेज टू कनकॉर्ड the seeds often leads farmer to seek out the aid of exploitative loan sharks। exploitative गलत लग रहा है मुझको। आगे है, मैक्सिको remains fraught with violence as both organized crime and government corruption run rampant throughout the nation। रन रैम्पेटली होगा क्योंकि एडवर्ब की ज़रूरत है यहाँ पर, जहाँ तक मुझको लग रहा है। एट दिस पॉइंट परहैप्स द ओनली सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट इज थ्राइविंग इज द ड्रग कार्टेल्स हु मेक बिलियंस इन प्रॉफिट्स फ्रॉम एलिसिट ट्रेडिंग। सेक्टर, थ्राइविंग, कार्टेल्स, एलिसिट, पता नहीं इसका। आगे है, continuing to fuel the Yemeni confine with arms sport will also perpetuate the chaos on the ground that is creating a fertile breeding. Continuing to fuel the Yemeni confine with arms sport will also perpetuate the chaos on the ground that is creating a fertile कुछ समझ नहीं लग रहा। Since the eruption of the Syrian civil war during the Arab Spring over 4 years, the country has been inflicted by violent cause। पता नहीं इसका। As only way for India to emerge as the fourth pole in the emerging tripolar world are through। ये क्या करना है इसमें? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स में है। पार्ट ई जो हैगा वो करेक्ट है, और अदर में वो ढूंढना है एरर। एन ओनली वे फॉर इंडिया टू इमर्ज या टू इमर्ज होगा ना, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डेरिलियम और एन एक्यूट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कंफ्यूज नहीं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा। आगे है, टू द अनट्रेन्ड आई वेटलैंड्स आर इजीली एंड फ्रीक्वेंटली मिस्टेकन टू बी वेस्टलैंड, अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट शोज रिमार्केबल इकोलॉजिकल ignorance। To the untrained eye, wetlands, fourth untrained eye होगा I think। A heat event have serious implications for public health। A heat event has होगा ना, implications for public health। It can lead up to
fatal heat stroke in small percentage of people, while much more could encounter exhaustion, cramps and fainting. Has होगा heat event has. आगे है while the government has taken a little steps in the realm of women rights, its dealing with the decent are the same as those of any. While the government has taken a little steps, has taken a, अगर यहाँ पर steps है तो आर्टिकल अ कैसे यूज हुआ, has taken a little steps गलत है ये बी, ये बी वाला गलत लग रहा है मुझको. ओके. Which had celebrated its third century in the First World War abroad, the Romanov dynasty with revolution at home and catastrophic failure in power in 1913 came to a swift end. थोड़ा सा अजीब सा है, पहले ऑप्शंस को देखकर करते हैं. बी, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब्रॉड, द Romanov dynasty which had celebrated its third century in power in 1930 come to a swift end. Its third century with revolution at home and catastrophic failure in power. बन नहीं रहा ये. सी देखते हैं. with revolution हाँ यही है. with revolution at home and catastrophic failure in power in 1930 came to a swift end which had, नहीं ये नहीं बन रहा. आगे देखते हैं. with revolution at home and catastrophic failure in the First World War abroad, the Romanov dynasty which had celebrated its third century in power in 1913 came to a swift end. अजीब सा है यार ये. In the First World War abroad, the Romanov dynasty in power. आ गया. The only significant infrastructure project connecting Europe with Asia was the Great Siberian Route, which allowed people travel Siberia. Connecting Europe with Asia was the only significant infrastructure project. Connecting Europe with Asia was the only significant infrastructure project. Great Siberian Route which allowed people, ये लग रहा है मुझको BACD. Connecting Europe with Asia was the only significant infrastructure project. आगे है. Corruption but it has avoided civil war. Cameroon is a country rife with corruption. B or A. Cameroon is a country rife with corruption but it has avoided civil war, and it is unlike countries like Rwanda and Liberia, an entirely male dominated society. Cameroon is a country rife with corruption. आगे है. Proximity to university have succeeded largely. Silicon Valley and other centers of entrepreneurship have succeeded largely because of their CB, because of their proximity to universities with strong science and technology programs. आगे है. Political prisoners of South Africa's apartheid regime, the late 20th century, when the facility was used as a maximum security prison for Robben Island's most अजीब से हैं यार थोड़े. Robben Island's most poignant period was the late 20th century when the facility was used as a maximum security prison for, हाँ ये DBCA है ना. Robben Island's most poignant period was the late 20th century when the facility was used as a maximum security prison for. आगे है. The police could not, phrase replacement है. The police could not arrest the convict based on circumstantial evidence. Evidence तो noun हो गया. Circumstantial adjective. Based on circumstantial, on circumstance, ठीक लग रहा है.
आगे है द ट्रीटी वॉज साइंड इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स and guidelines agreed upon by the rulers of two nations. The treaty was signed in accordance with the population density of Kolkata is the highest as that of any other is the highest than that of any other city. लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल यूज होता है ना. द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कोलकाता इज एज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी. पता नहीं यार इसका. आगे है ओके. When a realization finally dashed him, it was too late for amends. When a realization finally chanced on him, dawned upon, पता नहीं इसका भी. Samira dash great money when a distant aunt suddenly passed away. Samira dash great money. Samira came across as broke into, gave way, looked up to होगा. I think Samira looked up to great money when a distant aunt suddenly passed away. So पैराग्राफ कर लेते हैं. अब कितना है ये पढ़ लेते हैं पहले. इट वॉज द विंटर ऑफ 2015 एंड माई सिस्टर एंड आई वर परफॉर्मिंग परिक्रमा. हाँ परिक्रमा सही है, इसको छोड़ो. इट वॉज द विंटर ऑफ 2015 एंड माई सिस्टर एंड आई वर परफॉर्मिंग परिक्रमा. क्या बोलते हैं परिक्रमा, जो हम आले वाले करते हैं. Around a certain holy shrine. I am intentionally choosing to keep the name of the place under wraps lest the aggressive worshippers take offense. Okay. Personally, my faith in organized religion lies nestled between dissent and denial, but I did not want my conviction in the non-existence of the non-visible to challenge my sister's unwavering belief. Okay, so we had decided to brave the cold and visit a couple of temples before winter vacations ended. Okay, as we finished the final stretch, I heard someone walking behind us, muttering a barrage of incessant mantras. Okay, muttering means हो गया जो बोलते नहीं ऐसे. Another ardent devotee. Okay, I presumed without giving it much thought. When we finally stopped, the man behind us came forward, extended his hand and said Dakshina. As per my limited knowledge of the Indian structure of religious appeasement, a Dakshina entailed a fee or a gift which must be given of your own free will to the person who performs a puja for your benefit. Okay. हाँ वही जो पंडित आपके लिए कुछ करता है उसको देते हैं ना दक्षिणा. The said benefit could be spiritual or material. Since we had not exactly commissioned his services, I asked him why we should pay him. I walked behind you and prayed the Almighty to give you whatever you want. Okay, he stated in casual tone. But we did not ask you to, I chipped in. So what? He countered. A priest does his duty whether you ask him to do it or not. Assuming that this argument was bound to escalate into needless friction, we started to walk away, but the man did not relent. God will be displeased if you don't pay me, he said, sounding belligerent. Nothing that you have prayed for will ever fructify. Why? I responded without turning. Does he not listen to anyone but you? He answered, he listens only to us. Okay. क्या बात बोल दी यार. His settlement made me realize that the dream of a casteless India was not going to be fulfilled anytime soon. No force of globalization could open the windows of a mind which had been caged by the entrenched sense of privilege. Economic prowess might lend wind to our sails, but societal attitudes would always be our anchor. We visited a few other shrines across central India and a pattern began to emerge. God was apparently under arrest. The temples and their premises had been
appropriated by a class of priests who served as a conduit between the deity and the devotee. Faith had become a transaction. If you had the money, divine blessings were all yours to corner. क्या पैराग्राफ है. What can be inferred about the priest from the passage? He was the only priest in the temple. He did not like the author. नहीं, he was in need of money. He wanted to harm the author. He was a persistent man. What did the author choose not to reveal the name of the why? क्यों नहीं किया? He was a supporter. He could not recall. He did not want to offend. हाँ, ये था aggressive worshippers वाला था ना. Only third. He did not want to offend. यही है ना, एक बार देख लेते हैं. I am intentionally choosing to keep the name of place under wraps lest the aggressive worships take offense. Which of the following describes the common pattern the author observed after visiting some shrines across the central India? Divine blessings being traded for money? Yes. God being under arrest? Yes. Priest controlling the temples? Faith begins in सभी हैं यार. Sorry. Why did author not agree to pay the dakshina initially? They did not have enough money. They had not commissioned the service of the priest. They did not about the tradition. They had no times for bargaining. They mistook the priest for a beggar. ये था कि उन्होंने कहा ही नहीं था कुछ करने के लिए. What made the author realize that the dream of casteless India was not going to be fulfilled any time soon? The poor state तो नहीं, the rude behavior तो नहीं, the sense of privilege in the priest's word. ये बोल रहा था ना प्रीस्ट की वो भगवान सिर्फ हमारी ही बात सुनते हैं. तो ये था. Why did the author visit the temples in cold despite having no belief in religion? तो फिर भी वो क्योंकि वो अपनी बहन का जो चैलेंज नहीं, he did not want, नहीं ये भी नहीं था, क्या था, he wanted to make her sister, he did not want to challenge his sister's belief. Choose the word nearest in meaning of the word ardent. Ardent का another ardent devote, opulent, knowledgeable, popular, passionate. पैशनेट होगा आई थिंक. अब बाकी देख लेते हैं ये चार. ये है एट दिस पॉइंट परहैप्स द ओनली सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट इज थ्राइविंग इज द ड्रग कार्टेल्स. पता नहीं यार इसका. eruption during inflicted, इस पर डिस्कशन कर ही चुके हैं, ये मालूम नहीं है. तो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं. अब देखते हैं इसको. ओके तो पहले ये डाली हुई है, इसको बाद में देखते हैं. पहले छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं. ये देखते हैं 45% ऑफ 360, तो ये आ जाएगा 9/20 ऑफ 360. ठीक है, ये आ जाएगा 18. 18 नया 162 होता है और 30 पंजे 150, तो ये 2 11 212. क्या गलती कर दी अब. 9/20 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 आ गया. 18 नया 162 होता है ना, 9 8 72. हाँ एक ये कितना होगा, 30 30 इंटू 5 150 ही होगा. ये 312, सॉरी फिर क्या कर रहा हूँ मैं. आगे 729 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का क्यूब होता है, तो ये 81 होगा. फिर 81 में हम 49 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 130, और 5 जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि 26 5 130 होता है. ये 784 किसका होता है, 28 का. 28 का होता है ना. 28 इंटू 15 है, 15 8 120. 28 का होता है ना, क्या 22 का होता है, नहीं 28 का ही होता है. 15 8 120, 15 दूना 30 और 12 42 हो गया. 420 को 16 से करेंगे तो 15 8 120 है ना. 15 दूना 16 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32. ये तो फिर कुछ गलती कर दी है. 25 का 625, 26 का 627, 28 का ही होता है यार. इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16,
तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 15 सत्ते कितना होता है 105, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सॉरी 4 शीके 24, तो ये कितना आ गया 4 दूनी 8, हाँ 26.25 आ गया। उधर 16.25 है तो माइनस होकर 10 हो जाएगा ये। आगे है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 में से 124 माइनस करेंगे तो 132, 25% ऑफ 432, 1/4 है ना 108, प्लस करेंगे 10, 4 240, 8 से करेंगे डिवाइड तो 30 आ जाएगा ये। इसको देख लेते हैं 16 और 13, ठीक है 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 और 1 10, 1 2 और 3 30 आ जाएगा ये। 30 को डिवाइड करेंगे 2.5 मीन्स 300 से, सो 25 एकम 25, ये 150 आ गया। 25 5 125, 25 शी का 150 होते हैं, तो ये 16 आ गया। 16 में 11.25 जोड़ेंगे तो 5 2 7 27.25 आ जाएगा ये, ठीक है। 27.25 में 2.75 जोड़ देंगे तो 5 5 10, 2 7 9 1 10, 7 2 9 1 10, 30 आ जाएगा ये। यार 30 ही आएगा, कहाँ गलती कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको। आगे है 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है 12 का, ओके 12 इंटू 12 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60, 12 पंजा 60, 5 5 25, तो ये 60 ही आ गया। 60 और 30% ऑफ 45, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 5 9 195, 75 माइनस करेंगे तो 0, 120। अब क्या गलती कर दी, 25, 12 इंटू 12 60 है नीचे, 12 पंजा 60, 5 बजे 25, 12 पंजा 60 आ गया। ये 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पंजे 15, ओके 5 है, ठीक है। ये 6 3 9 है, 195 ही आएगा फिर। 75 माइनस करेंगे तो एक, ये है तो है 120, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। आगे है 125 है ना, ये 125 में ये जोड़ते हैं 14 पंजा 70, 14 दूना 28 और 7 35, तो 5 7 400, 475 आ गया। इसमें से 125 और जोड़ देंगे तो ये 600 होगा पूरा, 100 ऊपर 1500 नीचे, मतलब 2 0 कैंसिल, 15 चौका 60, 5 5 10, अब क्या गलती, 15 चौका 60 हो गया ये, ठीक है तो 0 40 आ जाएगा ये। आगे है, ये है x प्लस 480, ठीक है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा 12 पंजा 60, 12 एकम 12 और 6 18, तो ये कितना होगा x प्लस 300, ये 2x प्लस 100 है, तो x कितना हो जाएगा 200। आ गया 75% ऑफ 3/4 400, तो ये 1200 आ गया। इसमें से 450 माइनस करेंगे तो 750, 750 25 ऊपर और 375 नीचे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये 25 मांझे 125, 15 पाँच 75, तो 50 आ गया ये। आगे है, ये करते हैं जल्दी से, 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 340, 17 से करेंगे तो 17 दूना 34, 20 हो गया। ये 300 टोटल हो गया, 300 में से 120 निकालेंगे तो 180, ये बाद में देखते हैं। आगे है, हाँ ये देखते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज पहले 21 प्लस हुए, फिर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4 42, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, तो ये डबल हो रहा है। तो यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर फिर डबल होगा, तो 436, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 कम 2 3, 6 6 12, 3 3 6 और 1 772। आगे 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6 गया 2 23, इसका और इसका पता नहीं। 14 में से 7 गया 7, 7 में से 4 गया 3 37, 5 में से 4 गया 12 में से 8 गया 4 41। अब इसमें 4 का डिफरेंस है ना, इसमें अगर 4 का डिफरेंस लेंगे तो 27, फिर 4 का लेंगे तो 31, लेकिन ये डिफरेंस बन नहीं रहा।
अगर हम यहाँ पर डिफरेंस 6 का लेंगे तो 29 आ गया, 5 का लेंगे तो फिर 34। कैसे होगा यार ये, बाद में देखते हैं इसको। ये देखते हैं ये कितना है, 224 में 12 जुड़े पहले, फिर 14, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं। ये कितने जुड़े, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 32। तो 12 2 14, 3 17, 17 और 4 21, या 12 3 14 4 18, 18 और 6 24। हाँ 14 4 18, 18 से 24, 24 और 8 32। तो ये बन गया 250 में 18 जोड़ेंगे तो 268। ये अब देखते हैं, पेज बदल लेते हैं ना। ये कितना है, 14 में से 9 गया 5, 1 15, फिर 4 में से 4 गया 0, 12 में से 9 गया 3, ये माइनस हुए ना, फिर प्लस हुए, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45। तो अब फिर 15 1 मतलब 29, 15 चौका 60 माइनस होंगे इसमें से, 9 में से 9 79। ये देख लेते हैं, 34 प्लस 4 38। ये मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा है, नहीं है मल्टीप्लाई तो नहीं है। 38, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 16, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 30, 36। इसका और इसका पता नहीं। तो ये 4 और 12, यहाँ कितना है, 6 में से 0, तो अगर 8 का डिफरेंस लेंगे 28 होगा यहाँ पर। तो 36 और 28 14, 3 2 5 और 1 6, 64। 90 में 64 जोड़ेंगे तो 154 ऑप्शन में तो है। और कर लेते हैं, 28 और 8 कितना होता है, 36 हो गया ना। 28 और 8 कितना होता है, 36। तो ये 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100। हाँ ठीक है, 154 ही होगा। अब ये करते हैं, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 180। 4 पर जाएंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 15 30 45, 3 चौके 12 और हाँ 15 और 12, ये 144 और 7। ये किसका होता है, 12 और 12 होते हैं। माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा। 3 और 4, 3 और 4, तो हमने 7 बनाना है। 3 3 9, 4 चौके 16, ठीक है 16 और 9। तो इसमें ये बड़ा हो गया, इसमें ये, तो फिर नो रिलेशन होगा। ये है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। 96 है, 12 8 96, 40, 8 पंजे 40। तो इस केस में तो फिर से वही है, इससे ये बड़ा, इससे ये ठीक है। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई बोलेंगे ना, नहीं नहीं, एक्स सीधी एक्स लेस देन वाई होगा ना, फिर ये एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 208, 2 104, 13 अट्ठे 108 होता है ना, 8 दूना 16, 16 और 13, 13 सत्ता 91। तो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ओके, 2 अप्रॉक्सीमेशन भी डाली गई है। 55% ऑफ 2400, तो 24 जीरो तो छोड़ो, 24 पंजे 120, 12 24 पंजे 120, तो 1320 आ गया। इसमें हम अगर 480 जोड़ेंगे तो 1800 आ गया। 1800 में से 300 घटाएंगे तो 1500, 1500 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। यह है 25 इंटू 12, 12 पंजा 60, 12 दूना 24 और 6 300, 20 से डिवाइड करेंगे तो 15, गलत तो नहीं कुछ कर रहा हूँ, 15 और इंटू 18, ओके 15 अट्ठा 120, 15 एकम 15 और 12 270। अब करते हैं DI। Okay, the given bar graph shows the number of male politician and the percentage of female politician out of total number of। बनानी पड़ेगी इसको, अभी साइड पर करते हैं।
ओके, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? केरला हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और गुजरात। डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव डाली गई है। नंबर ऑफ मेल पॉलिटिशियन, फीमेल और टोटल। पहले मेल सभी के लिख लेते हैं। 900, 480, 540, 390 और 1260। तो फीमेल 25% है, इट मीन्स 75%। 3/4 की वैल्यू 900 है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 1200। तो 25% कितना होगा फिर? 25% होगा ना, 2 0 कैंसिल, 12 पंजा 60, 12 1 दूना 24 और 6 300 होगा फिर ये। आगे है, आगे 60% की वैल्यू है 480। 60% मीन्स 3/5 ना, तो ये 160। एक की वैल्यू कितनी है? 800। हमने किसकी निकालनी है? 40% की, तो 320। आगे सिक्किम का 64% है ना, तो 36% है। 4 नए 9/25 की वैल्यू है 540, तो ये 60। एक की वैल्यू 1500 होगी, एक की वैल्यू, तो इसकी कितनी होगी? 15 चौका 60, 15 छिका 90 और 6 96, 960। ठीक किया ना मैंने? ये 536 की वैल्यू मीन्स 9/25 की वैल्यू 540 है, ये 60 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 0, 25 का 150 होते हैं। और अब 64 की निकालनी है, 2 0 गई, 15 चौका 60, 6 आ गया, 15 छिका 90। हाँ ठीक है। आगे है 35 है, तो 65%। 65% मीन्स 13/20 की वैल्यू 390, तो ये 30 की है। एक की वैल्यू 600 हो गई, तो 35 की कितनी होगी फिर? 35 के 210। गुजरात देखते हैं, 70%। 7/10 की वैल्यू 1260 है। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, एक की वैल्यू 1800 है, तो ये 540 होगी। तो जल्दी से करते हैं। नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिशियंस इन गुजरात 540 हैं। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस इन केरला? 1200। तो 1200 में से 500 घटाया 740, सॉरी 740 और घटाए तो 660 और 12, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 55%। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिशियन इन असम। असम के फीमेल पॉलिटिशियन 210 हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियन इन सिक्किम 0, 4 से 10, 5 9 14 और 1 1500। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 पंजरे 7, रेशो 50 आ गया। ये आ गया। फाइंड द एवरेज मेल ऑफ पॉलिटिशियन केरला, सिक्किम एंड गुजरात। तो केरला, सिक्किम और गुजरात के भी पूरे देख लेते हैं। 0 6 4 10, 12 5 17 और 1 18। मेल पूछे हैं ना, सॉरी मेल पूछे हैं केरला, सिक्किम और गुजरात के। तो 900, 500, 1400, 1400 और 1200 कितना होता है? 26। ये कितना हो गया फिर? 40 और 2700। 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 आ जाएगा ये। आगे है, इन उत्तराखंड 45% ऑफ पॉलिटिशियन बिलोंग टू पार्टी ए। उत्तराखंड में पहले टोटल निकाल लेते हैं। 0 8 तो 10, 45% है जो वो कितने हैं? ए पार्टी को बिलोंग करते हैं। मीन्स 45, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36। 0, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 440 इसमें है। इफ़ इन पार्टी ए देयर आर 30% फीमेल्स। 30% मीन्स 108 फीमेल्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन पार्टी बी। टोटल फीमेल्स कितनी हैं? किसका बोला गया था? उत्तराखंड में 320 है, तो ये फिर 10 में से 8 गया 2, ये 1, 212 होंगी फिर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉलिटिशियन इन सिक्किम। फीमेल पॉलिटिशियन इन सिक्किम, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल पॉलिटिशियन इन उत्तराखंड एंड असम। उत्तराखंड और असम 0 8 9 17, 4 3 7 और 1 8, 870 और 960, 110। ओके, तो ये बन गई है
अब इसको यार ये हुई नहीं, 16.75 है, ये 13.25 है। 5 5 10 7 9 1 10 6 6 3 9 और 1 10, 30 आ गया ना ये। 30 डिवाइडेड बाय 2.5 है, पॉइंट हटा के मैंने ज़ीरो यहाँ लिख दी। 25 एकम 25, ये आ गया 150। तो 25 शी का 150 होते हैं 16, 16.00 में 11.25 कर दिए, 5 2 7, 27.25 आ गए। अब ये x के इधर से जो है वो प्लस होगा, तो ये 30 बनना चाहिए, 30 ऑप्शन में ही नहीं है। क्या गलती कर रहा हूँ यार मैं, आप मुझे बताइएगा इसमें प्लीज़। लेकिन 2 बार कर लिया, ये हुआ ही नहीं है। एक ये नहीं हुआ, इसमें कैसे किया था इसको एक बार देख लेते हैं, फिर जल्दी से करते हैं। इधर था ये, हाँ 37 और 41 है ना, ये कैसे बनेंगे फिर मेरे उस प्राइम नंबर चल रहे हैं ये भाई। 23 24 25 26 27 28 29 30 31, हाँ प्राइम नंबर चल रहे हैं। 7 9 16 8 2 10, 216 टाइम पर दिमाग चल गया। अब करते हैं अर्थमेटिक। ये नहीं हुआ, पर इसको देखते हैं। ABC कंप्लीट, ओके। ए करता है 16 में, बी करता है 12 में, सी करता है 20 में। तो ये टोटल किसका होगा? 80 तो नहीं होगा ना, 120 होगा ना। नहीं 120 भी नहीं होगा। 20 के टेबल में 16 में, 12 में और 20 में, 20 का टेबल ही पढ़ते हैं, वही जाएंगे। 160 लिख लेते हैं फिर। 16 10 160, 12 1 12, 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। A started the work and joined by B and C every fifth hour, and the process continued till the completion of work. Find the time taken to work in this way. Every fifth hour, 1 मिनट मतलब 4 घंटे वो काम करते हैं ना पहले। ए जो है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड ज्वाइंड बाय बी एंड सी एवरी फिफ्थ आवर, ओके। ए स्टार्टेड द वर्क, तो 16 पंजे 80, इसने काम कर लिया, 80 रह गया। और 15 और 8 कितने होते हैं? 22। कैसा दिया गया है यार ये, पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। स्टार्टेड द वर्क एंड ज्वाइंड बाय बी एंड सी एवरी फिफ्थ आवर, एवरी फिफ्थ आवर। ए ने काम शुरू किया और प्रत्येक 5वें घंटे बी और सी उससे जुड़ता है, प्रत्येक 5वें घंटे। तो पहले ओके, ध्यान से करते हैं। 10 15 25 और 8 कितने होते हैं? 10 15 25 और 8 33। पता नहीं यार क्या, रीजनिंग करते हैं यार। क्वांट में जितना मर्जी तेज हो जाओ, फिर भी काम खराब हो ही जाता है। अब इसे देखते हैं रीजनिंग को, ये सही हो। ये है 7 ट्रेन्स हैं, ओके, कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कोचेस 2 3 4 6, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ट्रेन्स, तो कंडीशन क्या है? नॉट मोर देन 2 सेम होंगी, सेम नहीं होंगे 2 से ज़्यादा में। और एट लीस्ट 5, कम से कम 5 ट्रेन्स कंटेन डिफरेंट, ओके। तो फिर इसको लिख लेते हैं ABCDEFG। अजीब सी है थोड़ी। ट्रेन ई कंटेन्स ओनली 3 कोचेस, ओके। ट्रेन एफ कंटेन्स 4 मोर नंबर ऑफ, एफ जो है वो 4 ज़्यादा बी से। तो ऐसे कितने बनते हैं? 2 4 6 भी बनता है, 3 4 7 नहीं, 4 4 8 नहीं, 6 4 10 भी बनता है। तो 2 केसेस बनेंगे ना। एक बार F6 है और B2 हो सकता है, ठीक है। और दूसरे केस में F10 है, B6 भी हो सकता है। ट्रेन सी कंटेन्स लोएस्ट नंबर ऑफ कोचेस, तो 2 ही होंगे इसके पास फिर। ट्रेन सी कंटेन लोएस्ट नंबर ऑफ कोचेस,
डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन डी एंड एफ इज़ 4। डी और एफ में डिफरेंस 4 का है। डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन डी एंड एफ इज़ 4। क्या बोला है ये? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोचेज, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन डी एंड एफ इज़ 4। एक क्लू, ट्रेन जी, ये छोड़ दिया ना। ट्रेन जी कंटेन्स 6 मोर नंबर कोचेज देन ए। जी के 6 ज़्यादा हैं ए से, तो 2 6 8 नहीं बन रहा है, 3 6 9 4 6 10 बन रहा है, 4 और 10 ही है फिर। तो जी का होगा 10 और ए का होगा 4। ठीक है, 10 और 4। अब बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन डी एंड एफ इज़ 4। डी और एफ में डिफरेंस 4 का है, तो ये 10 भी हो सकता है, 2 भी। 2 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 2 ही होंगे ना, तो ये 10 होगा फिर। इस केस में ये डी और एफ में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है ना, तो 6 हो सकता है ये। अब देखते हैं इसको। उन्होंने बोला था कि 5 कम से कम डिफरेंट होने चाहिए पूरी तरह। 1 2 3, एटलीस्ट 5 बोला गया ना। 10 और 10, 6 और 6। इस केस में क्या गड़बड़ है? अब पता कैसे लगाएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत? नॉट मोर देन 2 ट्रेन्स कंटेन सेम नंबर एटलीस्ट 5 ट्रेन्स, ये क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कोचेज ऑफ डी एंड सी इज़ एटलीस्ट 5। डी और सी में कम से कम 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये गया, ये ठीक है हमारा। व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन इन सी एंड डी? सी और डी में कितने हैं? सी और डी में 12। सम पूछा गया ना। हाउ मैनी ट्रेन्स कंटेन मोर नंबर ऑफ कोचेज देन ट्रेन ए? ट्रेन ए से ज़्यादा किसने? हाउ मैनी ट्रेन्स कंटेन मोर नंबर ऑफ कोचेज देन ट्रेन ए? ओके, तो 1 2 और 3 है सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन कंटेन लोएस्ट नंबर? तो बी और सी। बी दिया गया ना अकेला। आ गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ कोचेज ऑफ ट्रेन एफ एंड बी? एफ और बी में सम पूछा गया ना। एफ एंड बी 8। यार इधर क्यों ऑप्शन में है? सही तो कर रहा हूँ मैं। देखा जाएगा अब फिर। या देयर आर 9 मेंबर्स, इसको बाद में देखते हैं। ये करते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली सक्सीडेड एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर? सिंबल के पहले भी नंबर, बाद में भी नंबर है। सिंबल के पहले भी नंबर, बाद में भी। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 तो यहीं हो गए। 4 5 हो गए, ठीक है। 6 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये 6 है मेरे हिसाब से। देखो, 1 ये हो गया, ठीक है। 2 ये हो गया, 3 और 4, ओके। और 5 6 6 है यार टोटल। नन ऑफ द अबव आएगा फिर। इन द गिवन अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 6th नंबर फ्रॉम द राइट एंड? ओके, 6th नंबर पूछा गया है। 6th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। 7th टू द लेफ्ट ऑफ 6th नंबर पहले देते हैं राइट एंड से। 3 तो यही होगा, 4 5 और 2 मिनट यार। 3, ठीक है। 4 5 और 6, 1 हो गया, मतलब 1 है। इसके 7th लेफ्ट में एलिमेंट देखना है। 1 2 3 4 5 एस है। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर? कौन नंबर के बाद कॉन्सोनेंट देखते हैं। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 1, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 2, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 3, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 4, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 5। 5 है टोटल। आगे, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है? 7, ठीक है। एंड
फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो 8। इसमें प्राइम नंबर देखने हैं ना, एक तो प्राइम नंबर नहीं होता ना, तो एक ये हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 है टोटल। In the given arrangement, which symbol is third to the right of ninth element from the left hand? Ninth element 3 3 6 2 है ना, ये 3 3 6 2 है। इसके सिंबल विच सिंबल इज थर्ड टू द राइट ऑफ, ओके, थर्ड राइट में 1 हो गया, 2 हो गया, बीटा है, फिर थर्ड टू द राइट ऑफ तो एट द रेट है। which in the given arrangement which symbol is third to the right of ninth element from the left hand? ninth element बोला गया है 3, ठीक है, 3 3 6 3 9 4 है। इसके थर्ड टू द राइट 1 2 3, थर्ड टू द राइट सिंबल है, विच सिंबल इज थर्ड टू द राइट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो बीटा होगा, एट द रेट बीटा परसेंटेज। इसका कंफ्यूजिंग है यार, छोड़ो इसको। ये देखते हैं 8 फ्रेंड्स हैं, स्टडी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर, नॉट मोर देन 3 फ्रेंड्स स्टडी सेम सब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। दो दो वेरिएबल्स डाले हुए हैं यार क्लर्क में, इसको भी बाद में देखते हैं। ये देखते हैं 8 पर्सन्स हैं, सेट अराउंड द साइड ऑफ स्क्वायर टेबल सच दैट 2 पर्सन सेट ऑन ईच साइड। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऑफ देम फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है, कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं प्रैक्टिस मॉक वाले। नो, ये कंडीशन, नो 2 पर्सन स्टार्ट्स विद नेम्स स्टार्टिंग विद कॉन्सेक्यूटिव अल्फ़ाबेट सेट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव लेटर नहीं होंगे, सिंपल है। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड है ना, हु फेसेस लेफ्ट है, लेफ्ट, क्यू फेसेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु फेसेस अवे फ्रॉम द, यहाँ आएगा ना ये, हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, बोथ वी एंड पी सेट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, तो वी और पी यहाँ आएगा, या फिर वी और पी यहाँ आएगा। इस केस में इसको यहाँ मान लेते हैं। वी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, अब आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, लेकिन कंडीशन बोली गई थी कि सेम पी क्यू आर इधर ही होगा फिर, और राइट है तो यहाँ आ जाएगा आर, तो ठीक है, फिर यहाँ वी यहाँ पी। इस केस में देखते हैं तो आर के, ओके, आर के इमीडिएट राइट में है, तो वी यहाँ, कटिंग बड़ी होगी, वी यहाँ पी यहाँ। ओके, चल रहा है सही सब कुछ। यू सेट्स ऑपोजिट टू क्यू, यू ऑपोजिट है क्यू के, तो ये तो गया केस, यू यहाँ आ गया, फिर ये वी है हमारी। यू सेट्स ऑपोजिट टू के, इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, बचे कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी बचा है ना, टी यहाँ तो होगा नहीं, टी यहीं होगा, डब्ल्यू यहीं होगा। डब्ल्यू के क्या बोला गया, इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू सेंटर की ओर, क्यू बाहर की ओर। ओके, इमीडिएट नेबर टी एंड वी फेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ यू। टी और वी, यार इसकी डायरेक्शन तो कहीं क्लियर ही नहीं की गई है। टी और वी फेस द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वी। यार कंडीशन तो यहाँ, डायरेक्शन तो दी ही नहीं गई इसकी, सभी क्लू पढ़ लिए। क्यू सेट सेकंड टू द फेसेस अवे वी एंड पी, पी सेट्स इमीडिएट राइट, यू सेट्स इमीडिएट नेबर्स, विच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के विद रिस्पेक्ट टू क्यू की पोजीशन, अगर ये अंदर की ओर देख रहा है तो 1 2, थर्ड टू द लेफ्ट,
ओके अगर बाहर की ओर देख रहा है तो 1 2 3 4 5th टू द राइट, बोथ ए एंड सी। If T and W interchange their position, T और W ओके, then who sits fourth to the right of W? अगर T और W चेंज करते हैं तो फोर्थ टू द राइट ऑफ W 1 2 3 V। T और W ने चेंज की ना पोजीशन, तो ओके T और W ने पोजीशन चेंज की तो W यहाँ होगा, और फोर्थ टू द राइट ऑफ W 1 2 3 U होगा फिर। फाइंड द ऑड वन आउट U V, एक का गैप है, R Q एक का गैप, तो W V T R S Q, यार सही हो, ये गलत ना चली जाए। Who sits third to the right of Q 1 2 U। If all the persons sit in alphabetical order in clockwise direction starting from P, then position of how many persons remain unchanged except P। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है ना, QRSTUVW, तो एक है फिर। इसको देखते हैं, विच सिंबल शुड रिप्लेस बी और जी को, डेफिनेटली ट्रू बताना है बी और जी को। ओके तो ये यहाँ तो ऐसे सिंबल हो या इक्वल हो, ठीक है। ये 9 और 6 को डेफिनेटली ट्रू बताना है, 9 और 6 ना, तो इधर की ओर होना चाहिए। 9 और 6 को बताना है, ये होगा फिर। ई से एल देखना है, ई से एल, ई से एल कैसे देखेंगे, ई से हम गए जे, तो गलत है पहला तो। एच से डी देखना है, एच से गए, फिर से एच से गए जे, जे से गए डी, सेकंड ठीक है। ई से के देखना है, ई से गए फिर से जे, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड। आगे है आर से एल चेक करना है, आर से एल, आर से एल चेक करना है ना, आर से हम गए क्यू, क्यू से गए एल, तो पहला तो ठीक है। एस से एन देखना है, आर से एस से एन देखना है, एस से एन है ना, एस से गए हम क्यू, ठीक है, क्यू से गए हम एन, गलत है। एल से ओ देखना है, एल से गए क्यू, क्यू से गए ओ, ये भी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। इसको देखते हैं, ओनली अ फ्यू कर्ड इज मिल्क, ओनली अ फ्यू मिल्क इज पनीर, नो कर्ड इज स्वीट, नो कर्ड इज स्वीट, ओके ओनली फ्यू कर्ड इज मिल्क, ओनली मिल्क इज ओके। सम कर्ड कैन बी पनीर, कुछ कर्ड पनीर हो सकते हैं, हो सकते हैं। एवरी मिल्क कैन बी स्वीट, सभी मिल्क स्वीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सम पनीर इज़ नॉट स्वीट, कुछ पनीर स्वीट नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ओके 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स हैं, सिट इन लीनियर रो फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ करते हैं इसको। लीनियर रो फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम, क्या डिस्टेंस बिटवीन, ओके ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, एक ऐसा केस ले लेंगे। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये तो गया फिर। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया ना। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, आर एंड पी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, आर और पी इकट्ठे नहीं हैं। क्यू सिट्स एडजेसेंट टू टी, क्यू और टी एडजेसेंट है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी में एक ही है। आर डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ एस, आर डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है, आर डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के राइट में आर है। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, क्यू और टी इकट्ठे हैं,
आर और पी इकट्ठे नहीं हो सकते, यू के सेकंड राइट पर आर है, एस और टी में एक है, और एस आर राइट के हैं, जो भी है। अब यू और आर को अगर बिठा कर देखें, एक तो यहाँ पहले यहाँ नहीं आ सकता, आर यहीं नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी आर आ सकता है ना, यू और आर। क्या बोला क्या गया था, आर सेट से सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यहाँ आर आ सकता है, यहाँ आर नहीं आ सकता, यहाँ भी आर आ सकता है, तो दो और लेनी पड़ेगी, को दिखाई दे रहा है ना, दो और लेनी पड़ेगी ये। अगर मैं वी पी और ओ, एक केस तो ये बन गया यू और आर वाला, ठीक है। इस केस में अगर मैं यू और आर को यहाँ रखता हूँ तो एस पॉसिबल नहीं होगी राइट में, इस केस में फिर यू और आर यहाँ हो गया, इस केस में पूरे भी हो गए, और एस के राइट में है, आर और पी इकट्ठे नहीं है ना, ओके, तो ये तो गया, ये देखा ही नहीं था, एस आर के राइट में है, एस और पी में एक है, सॉरी एस और टी में एक है ना, यहाँ पर वो हो गया है ना, वो एस और टी में एक है, तो यहाँ पर होगा, फिर बन गया डैश सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ रो, एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड ऑफ रो वी, हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू में कितने हैं, एक दो तीन चार, सॉरी एक दो तीन, और टाइम कितनी जल्दी हो जाता है, डैश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, 1 2 आर, who sits exactly between T and O, U, who sits exactly between T and O, none of the above होगा फिर, how many person sit between S and O, 1 2 3, ओके, ये करना है, ऑल वुमेन आर ब्रेव, ठीक है, नो मैन इन वुमेन, ओनली फ्यू मैन आर पायलट, सम वुमेन आर नॉट पायलट, कुछ वुमेन पायलट नहीं है, कुछ वुमेन पायलट नहीं है, सम वुमेन, कुछ मैन, कुछ पायलट वुमेन नहीं बोल सकते ना, ये थोड़ा ना बोलेंगे, सम ब्रेव आर नॉट मैन, कुछ ब्रेव मैन नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सम पायलट आर नॉट वुमेन, कुछ पायलट जो है वो वुमेन नहीं है, ये भी ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, योर टाइम, ये हुआ नहीं था, अब छोटे देखते हैं, यहाँ पर थे, ये देखते हैं कि डाउनलोड है, ठीक है, ये डाउनलोड दिया गया है, क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट वर्ड जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर में, ए बी सी यू वी डब्ल्यू एम एन जे के एल जेड, ओ सॉरी ये थोड़ा ना होगा, तो ये सी, अब and then letters are arranged in English alphabetical order, who among the following letter will be fifth from the right hand, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड देखेंगे तो वी पहले होगा, फिर होगा ओ, दो ओ होंगी, फिर के होगा, ये डब्ल्यू भी है यार, नहीं नहीं, फिर के, क्या बोल सकते हैं यार, इतने कम स्कोर्स आए हैं, पूरा जोर लग गया फिर भी इतने ही आए हैं यार, रीजनिंग में इतने कम स्कोर, मुझे लगता है कुछ पजल कोई गलत बन गई है, क्योंकि हमने 22-23 तो अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में, इंग्लिश तो यार बड़ी सोच समझ कर ली थी, ये प्रैक्टिस मॉक वाले ना, पता नहीं कौन कहाँ से डालते हैं ये, चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है, आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कल देते हैं फिर मॉक, परसों हमारा एग्ज़ाम भी है पहली शिफ्ट में, देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू सो मच।